Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to study a chapter, the archery test. So let's start. The Kauravas and the Pandavas prince had a wise and able teacher. His name was Guru Dronacharya. He was a great scholar of ancient scriptures, the Vedas and the Upanishads. But he was best known for his expertise in various warfare techniques and the art of archery. महाभारत के टाइम की ये स्टोरी है. यहाँ पे कौरवास और पांडवास क्या थे? भाई थे. और वो कहाँ पे एक आश्रम में जाते हैं जहाँ पे उनके गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य. तो वहाँ पे उनसे आर्चरी सीखने जाते हैं. The princes were sent to his ashram for learning art and skills in different disciplines. All the students, including the princes, were required to live according to the code of conduct of the ashram. They cleaned the ashram premises and fetched water, firewood, wild fruits and berries for the ashram. They fed the cattle and did other regular chores. अब आश्रम में जब स्टूडेंट रहते थे तो उन्हें आश्रम के सारे काम करने होते थे. वो पानी लेके आते थे, फ्रूट्स को कट करके लाते थे और ट्रीज़ में से लकड़ियाँ, जंगल में से लकड़ियाँ काट के लाते थे. मतलब जैसे जैसे उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती थी वैसे वैसे वो उसको फॉलो करते हुए अपना दिन स्पेंड करते थे. Though the Kauravas and the Pandavas were cousins, the Kauravas did not like the Pandavas prince. अब कौरव और पांडव क्या थे? एक दूसरे के कज़न थे, हालांकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे. Duryodhana, the eldest son of Kauravas, did not like living and learning with Pandavas. He especially disliked Arjun, one of the Pandavas' prince. Arjuna was very fond of archery and spent a lot of time practicing it. His hard work and dedication pleased Guru Drona. This annoyed दुर्योधना and made him feel very jealous of अर्जुन. दुर्योधन जो था वो कौरवों में सबसे बड़ा भाई था और वो पांडवों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, स्पेशली अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जो था वो गुरु द्रोणा का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था. लेकिन अर्जुन जो था वो आर्चरी में एक्सपर्ट था, माहिर था. क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस डेली किया करता था. One day during archery lessons, Guru Drona asked Arjuna to demonstrate how to hold the bow and arrow correctly. Duryodhana got angry. We are as skillful as Arjun. Why do you only favor him? This is not fair. Guru Drona felt hurt. He thought of a plan. He wanted to make his students understand why Arjuna was the best archer among them. At the end of the lesson, he made an announcement. Tomorrow will be a special day for all of you. I will conduct a test to determine the best archer amongst you. Everyone was excited. अब दुर्योधन जो था वो जेलस फील करता था कि हम भी उतने ही स्किलफुल हैं जितना अर्जुन है, तो गुरु द्रोणाचार्य उसको इतना फेवर क्यों करते हैं. तो ये चीज़ गुरु द्रोणा को बुरी लगी. तो उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट जो था कंडक्ट किया सारे भाइयों के बीच. The next day arrived. Guru Drona reached the class and all the students touched his feet. After a session of yoga and meditation, they were ready to begin the competition. Guru Drona took them to the other side of the ashram. They stopped about 100 feet away from a tall tree. There's a wooden bird on a branch on the tree, said Guru Drona. You have to hit the eye of that wooden bird with a single arrow. Are you ready? अब टेस्ट क्या था? टेस्ट जो था वो गुरु द्रोणा ने उन्हें बताया कि आपको 100 फीट दूर एक ट्री पे एक क्या बैठी है, चिड़िया बैठी है, उसकी आई में आपको एरो से हिट करना है, उसे मारना है. तो उनसे सबसे पूछा कि आप सब रेडी हो? The disciples looked at each other in surprise. The wooden bird was partially hidden by foliage. A prominent red eye of the bird shone in the distance. How is it possible? The students muttered.
इज इट सम काइंड ऑफ जोक? इट लुक इम्पॉसिबल। अब जब उन स्टूडेंट्स ने ट्री की तरफ, उस बर्ड की तरफ देखा तो वो बर्ड जो थी वो पत्तों के पीछे छुपी हुई थी। तो सारे बच्चे, स्टूडेंट्स जो थे वो कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बर्ड बहुत दूर है और वो ठीक से नज़र भी नहीं आ रही, तो उस पर तीर मारना कैसे पॉसिबल होगा, वो भी बर्ड की आई में। आई विल कॉल यू वन बाय वन, सेड गुरु द्रोणा। यू विल फर्स्ट टेक योर पोजिशन। आई विल आस्क अ क्वेश्चन विच यू नीड टू आंसर, एंड देन इफ आई से शूट यू मे शूट द एरो। अब गुरु द्रोणा कहते हैं कि मैं वन बाय वन तुम्हें बुलाऊंगा और तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उस क्वेश्चन का आंसर तुम सही दोगे तो ही मैं तुम्हें कहूँगा कि आप शूट करो। यस गुरुजी, द डिसिपल सेड इन अ फर्म एंड कॉन्फिडेंट वॉइस। युधिष्ठिरा स्टैंड बिसाइड मी। टेक योर बो एंड एरो एंड एम एट द बर्ड, गुरु द्रोणा इंस्ट्रक्टेड। युधिष्ठिरा प्लेस द एरो एंड स्ट्रेच द बो। अब सबसे पहले गुरु द्रोण ने किसको बुलाया? युधिष्ठिर को बुलाया, उसे अपने पास खड़े होने को कहा और कहा आप एम अपना साध लो, अपना निशाना साध लो उस बर्ड की तरफ। He took a deep breath and pointed toward the bird on the tree. Do you see the bird? asked गुरु द्रोणाचार्य। अब जब उन्होंने अपना तीर साधा हुआ था बर्ड की तरफ, तो गुरु द्रोण ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें बर्ड नजर आ रही है? तो उसने कहा यस गुरुजी, आई डू। गुड, सेड गुरु द्रोणाचार्य। व्हाट एल्स डू यू सी? अब गुरु ने उससे पूछा कि अब तुम्हें उसके अलावा क्या नजर आ रहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा आई कैन सी एवरीथिंग, द ट्री, द बर्ड, द लीफ, माई ब्रदर्स एंड इवन यू। अब युधिष्ठिर ने कहा मुझे तो उस बर्ड के अलावा सब कुछ नज़र आ रहा है, ट्रीज भी नज़र आ रहे हैं, लीव्स भी नज़र आ रहे हैं, अपने ब्रदर्स भी नज़र आ रहे हैं और मुझे तो आप भी नज़र आ रहे हो, उसने अपने गुरुजी से कहा। गुरु द्रोणा shook his head. Put your weapon down, son. You won't be able to bring down the bird with a single arrow. Disappointed, Yudhishthira returned to his place. अब उसके जो गुरुजी थे उन्होंने अपना सर ऐसे हिलाया और उन्होंने कहा कि आप अपना वेपन, अपना तीर कमान जो भी है वो वापस नीचे रख लो और अपने जगह पे वापस चले जाओ। तो युधिष्ठिरा बहुत डिसअपॉइंट हुआ और अपनी जगह पे वापस चला गया। दुर्योधना, योर टर्न, सेड गुरु द्रोणा। दुर्योधना टुक द एम एंड गुरु द्रोणा आस्क व्हाट डू यू सी। अब दुर्योधन को बुलाया गया, दुर्योधन से भी सेम क्वेश्चन पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? आई कैन सी द ट्री, द बर्ड ऑन इट एंड यू गुरुजी। तो दुर्योधन ने भी जवाब दिया कि मैं ट्री देख सकता हूँ, उस पर बर्ड देख सकता हूँ और आपको भी देख सकता हूँ। यू टू विल मिस द एम, प्लीज गो बैक टू योर प्लेस। अब गुरुजी ने कहा कि तुम भी अपना एम मिस करोगे, तुम भी अपनी जगह पे वापस चले जाओ। नकुल, सहदेव, भीम एंड अदर डिसिपल्स ऑल्सो गेव सिमिलर आंसर। यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग इनफ, एक्सप्लेन गुरु द्रोणा। आई एम श्योर यू ऑल विल मिस योर टारगेट। कम अर्जुन, इट्स योर टर्न नाउ। अब दुर्योधन के बाद बाकी सारे भाई आए, नकुल, सहदेव, भीम, इन सब ने भी सेम आंसर दिया। तो गुरु द्रोण ने कहा कि तुम सब भी अपना एम मिस कर दोगे। अब उन्होंने किसको बुलाया? अपने फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन को बुलाया। अर्जुन calmly went and stood beside the Guru. He pointed his arrow towards the tree. What do you see, Arjuna? asked Guru Dronacharya. A wooden bird with a red eye, said Arjun. अब अर्जुन की बारी आई, अर्जुन से भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो अर्जुन ने जवाब दिया कि मुझे बर्ड नजर आ रही है जिसकी लाल आंख है। गुरु द्रोणा paused. What else? he asked softly. Sorry Guruji, but I cannot see anything else, said Arjuna confidently. Can't you see the bird's leg or its beautiful wings? No Guruji, I can't. फिर गुरुजी ने उससे पूछा कि बर्ड के अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है? तो अर्जुन ने कहा नहीं गुरुजी, मुझे बर्ड के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो पूछते हैं क्या तुम्हें उसके ब्यूटीफुल फेदर्स, उसके टांगे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा? तो अर्जुन कहता है नो गुरुजी, मुझे सिर्फ बर्ड की आई नज़र आ रही है और मुझे इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। A smile spread across Guru Drona's face. Shoot, he said.
Arjun shoot his arrow and the bird fell on the ground with an arrow in its eye. अब गुरु द्रोणा के फेस पे एक स्माइल आ गई कि मेरे स्टूडेंट को बर्ड के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने फट से कमांड दे दी शूट। अब अर्जुन ने शूट किया तो वो बर्ड जो थी तीर के साथ नीचे गिर गई। तो उन्होंने सबने देखा कि उस बर्ड की आई में तीर लगा हुआ था। गुरु द्रोणा embraced Arjun. He turned to the other prince and explained, "This is how you should learn something with immense concentration and by using the correct approach. This is how you should do anything, focusing on the target and only on the target. If you have eye set only on your goal, you will surely achieve it. Be focused and success will be yours, no matter which field you are in." The princes were happy. They had learned a new lesson that day. अब अर्जुन की तीर अंदाजी देखकर गुरु द्रोणा बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने बाकी स्टूडेंट को ये समझाया कि अगर आप अपना ध्यान भटकाओगे तो आप अपने एम को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने अर्जुन का एग्जाम्पल दिया कि अर्जुन अपने एम को लेके कॉन्सेंट्रेटेड था, उसे कुछ भी नज़र नहीं आया, उसे सिर्फ बर्ड की आई नज़र आई और उसने उसे निशाना साध कर नीचे गिरा दिया। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि कॉन्सेंट्रेशन इज़ द की टू सक्सेस। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे तो हम अपने एम को जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।